والد کا نام شیخ سلیم، ماہین فاطمہ والد کا نام امتیاز خان، عمرہ فاطمہ والد کا نام محمد شبیر، محمد فیصل، محمد لطیف والد کا نام سیدہ علیزہ سیدہ، یہ پورے نام ہیں. یہاں پہ فہرست ہے، آپ لوگ پرنسپل صاحبہ سے مل لیجیے اور جن کا نام ہے اور تفصیلات کو دیکھتے ہوئے ان کا داخلہ ہو جائے گا اور کل سے اسکول کا آغاز بھی ہو جائے گا. کے سلسلے میں اس تقریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ کووڈ کی وجہ سے مسلسل 2 تعلیمی سال میں ہم نے داخلوں کی تقریب کا انعقاد عمل میں نہیں لایا اور داخلے بھی نہیں دیے، اور اس کی وجہ تھی کہ کووڈ میں سارے اسکولز بند تھے، کام بند تھا، کاروبار بند تھا، اور ساری دنیا کووڈ سے لڑ رہی تھی. اور اس سال کے تعلیمی آغاز پر ہم نے سابقہ 2 سال کے جو داخلے نہیں ہوئے تھے ان داخلوں کا بھی پورا کرنے کی کوشش کی، اور اس تعلیمی سال کے بھی داخلوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی. تو اگر ہم 3 سال کے داخلوں کے طلب کرنے کے بعد جو نتیجہ آیا، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ نشستیں 105 ہیں اور اس سال نرسری میں اس اسکول میں صرف 44 درخواستیں صحیح ثابت ہوئیں. اندازہ لگائیے کہ کتنا افسوس کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، ہر مرتبہ 7 دن تک درخواستیں طلب کی، 21 دن درخواستیں طلب کی، لیکن صحیح درخواست نہیں آئی. 105 میں اس سال صرف 44 کو نرسری میں داخلہ دیا جا رہا ہے. LKG میں 105 ہے، لیکن صرف 81 کو درخواستیں صحیح آئیں تو ان کو داخلہ دیا جا رہا ہے. UKG میں 105 نشستیں تھیں، لیکن صرف 77 کو داخلہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ درخواستیں صرف 77 ہی صحیح ہیں. تو آپ غور کریے، اور پھر درخواستیں تو کم آئیں، لیکن ایک لزوم تھا، اور وہ لزوم یہ تھا کہ جس دن جیسے آج کی تقریب ہے، اس تقریب میں جو بھی بچے کو داخلہ دیا جائے گا تو اس بچے کے ساتھ ان کے والد بھی رہیں گے اور والدہ بھی رہیں گے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ صرف والدہ ہے، والد نہیں ہے. دیکھیے، ایک چیز کو سمجھیے، جب تک کہ ماں باپ کی دونوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، جب تک اولاد نیک، قابل و کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو لا کر صرف یہاں چھوڑ دیے بچہ قابل ہو جائے گا، نہیں، ہم ہمارا کام کریں گے اور گھر میں گھر والوں کو ان کا کام کرنا ہوگا. اگر آپ صرف ہم پر ذمہ داری ڈالیں گے تعلیم کی اور تربیت کی تو ہم مکمل تعلیم و تربیت نہیں دے پائیں گے. تعلیم و تربیت مکمل ہوتی ہے تو استاد سے، اساتذہ سے، اسکول سے، والد اور والدہ اور گھر سے ہوتی ہے.
तभी ये मुकम्मल होती है। और आज हम सिर्फ पुकारते हैं, चीखते हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अरे आप पुकारने चीखने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आप खुद अपने साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं, कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। एक छोटा सा आईडी कार्ड नहीं बना सकते, एक आधार कार्ड नहीं बना सकते। सारे चीजें होना है, सब कुछ होना है। तो जब तक आपका आधार कार्ड नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, तो फिर आपको कैसा होगा? ठीक है, मैं जानता हूं कि गुर्बत है, गरीबी है, कोई लोग यहां रहते हैं, कोई वहां रहते हैं, कभी इस घर में किराए से हैं, कभी उस घर में हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन कहीं का भी तो वोटर कार्ड होना चाहिए, कहीं का भी आधार कार्ड होना चाहिए। कुछ भी नहीं रहा तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप इस इलाके में रहते हैं? लाइट का बिल, पानी का बिल, या जिस घर में किराए से हैं मकान मालिक का कुछ एक लेटर, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ बच्चे को लेकर आने, अकबर साहब दाखिला दे दो। भाई मुझे भी तो पता चलना है ना किसका बच्चा है, कहां रहता है, तफसीलात तो होना ना। कल के दिन अगर मुझसे पूछेंगे कि आप किसको पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पास भी तो होना है ना तफसीलात कि ये बच्चे को पढ़ा रहा हूं, इसके वालिद का ये नाम है, इसके वालदा का ये नाम है, ये इसका घर का पता है, ये इसका आधार कार्ड है, ये इसका राशन कार्ड है, ये इसका वोटर आईडी कार्ड है, और यहां पे रहता है, ये मकान मालिक का ये खत है। ये सारे तफसीलात हैं। नहीं तो मुझ पर इल्जाम लगा देंगे कि कुछ भी बोलकर। सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड, एक आधार कार्ड बनाने की फुर्सत नहीं है। तनकीदें तो बहुत करते हैं, इल्जामात तो बहुत लगाते हैं। अब मैं बाहर गया तो अब आप देखिए इतने लोग खड़े हैं, अकबर साहब दाखिला दो, खड़े हुए हैं, बस दाखिला दो। कैसे दूं? एक वक्त, दो वक्त, तीन वक्त आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब लाओ। नहीं लाते हैं तो क्या साल भर तक मैं अपने दरवाजे खोलकर दाखिले के लिए आते जाओ देते जाऊंगा? एक वक्त मुकर्रर करना पड़ेगा ना। आप बताओ, क्या आप स्कूल चलाए तो आप क्या साल भर तक दरखास्तें लेते रहेंगे, या एक वक्त मुकर्रर आप लेंगे? ये एक अजीबो गरीब सोच है हमारे लोगों की कि नहीं, बस तनकीद करेंगे, इल्जाम लगाएंगे। अरे भाई आप अपना काम करो। क्या एक एमएलए का काम है स्कूल चलाना, स्कूल बनाना? एमएलए कई के लिए? एमएलए सरकारी काम कराने के लिए। एमएलए का काम सरकारी मदारस के लिए नुमाइंदगी करना है। एमएलए का काम लाइट, मोरी या ड्रेनेज या पानी या रोड का इंतजाम करना। एमएलए का काम बल्दी, बरखी, आबरसानी व तालीमी मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी करना। एमएलए का काम अपनी जेब से स्कूल बना के पढ़ाना नहीं है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ये काम कर रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास तफसीलात रहे कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं। अगर मेरे पास तफसील नहीं है, कल के दिन कोई आके मुझसे पूछेगा कि आपके पास इतने बच्चे हैं, ये कहां के हैं, किधर के हैं, किसके हैं, तो मैं क्या बोलूं? ये बात को समझना चाहिए आप लोग को। और अभी भी मैं कह रहा हूं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संभाल सकता हूं। आसान है? 50 लाख क्या कोई आसान है? अरे आज इस मजमे में से कोई एक भी उठ के बोल दे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसका एक पैसा खाया है, या उसको लूटा है, या उसकी जमीन बेचकर खाया है,
तो गुमनामी की जिंदगी गुजार लूंगा, जिंदगी सियासी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। बेईमानी नहीं की कभी, एक एक पैसा जोड़कर ये इमारतों को बढ़ाता हूं, एक एक पैसा जोड़कर ये स्कूलों को चलाता हूं। किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए, नौनिहालों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। खुदारा समझो, समझो, अपने हमदर्दों को पहचानो, अपने मोहसिनों को पहचानो और धोखेबाजों को भी पहचानो। बातें तो बहुत करते, पहचानो और धोखेबाजों को भी पहचानो। बातें तो बहुत करते लेकिन करते क्या है? कौम के नाम पर बड़ी बड़ी खुतबात देते लेकिन कौम के लिए क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल है। लेकिन आज हम ये काम कर रहे हैं और ये भी बताना चाहूंगा, कई लोग समझते हैं ये स्कूल है तो ये मजलिस के स्कूल है। नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दवाखाने चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। ये स्कूल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नहीं, ये स्कूल मेरे अपने हैं जिसको मैं खुद चलाता हूं। जमात की कोई मदद नहीं है इसमें। ये स्कूल अपनी जेब से चलाता हूं, अपनी जेब से बनाया हूं। ये अलग बात है कि मेरा वजूद, मेरी शिनाख्त, मेरी पहचान जो कुछ भी है वो मजलिस से है। मेरी पहचान सब कुछ मजलिस से है। जो कुछ भी मेरे पास आज है ये बनाने के लिए ये जमात का तुफैल है, मेरे वालिद की दुआएं, उनके जूतियों का तुफैल है सालारे मिल्लत का कि आज मैं इस काबिल बना कि ये स्कूल बनाकर इसको चला सकूं। जमात का तुफैल है, लेकिन ये काम मैं अपने से कर रहा हूं। अपने से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं समझता हूं कि तालीम ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। और मैं खरजदार हूं यहां बैठी कई मां और बहनों की दुआओं का, जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। अगर दुआएं नहीं होती तो शायद मैं जिंदा ना होता। कोई 2-2, 3-3 गोलियां, चाकुओं के बेशुमार ज़र्ब, तलवारों के जख्म, गुर्दों के खराब, गोली लगने के बाद, अंतड़ियों के फटने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। लेकिन मैं जिंदा हूं तो दुआओं की वजह से। वो दुआओं का खर्च जो मुझ पर है उसको उतारने की कोशिश कर रहा हूं। इन तालीमी इदारों में हक नहीं देंगे औलाद को तो औलाद कैसे होगी? अटेंडेंस बराबर होना, अच्छा पढ़ना नहीं तो हम एक अब आए हैं कई लोग बच्चे हमारे पास 2-2, 3-3 महीने नहीं आए, 3-3 महीने नहीं आए और अब आ रहे बोल रहे नहीं अकबर साहब वो 3 महीने नहीं आए थे, वो बीमार थे, अब फिर आते हैं दाखिला दे दो। 3 महीने कोई बीमार रह सकता है? आप बताओ मुझे, क्या मजाक है? दिल लगी है? कोई चमन नहीं है कि जब चाहे जब टहलते आ जाएंगे, जब चाहे जब चले जाएंगे। पाबंदी से आना, अगर पाबंदी से नहीं आएंगे तो हम अपने स्कूल में वैसे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हम उनके दाखिलों को मनसूख करते हुए स्कूल से निकालने पे मजबूर हो जाएंगे। जब हम तालीम दे रहे हैं तो आपको आना होगा, अगर नहीं आएंगे तो कैसा होगा? हम कितनी मेहनत करते हैं एक एक बच्चे के पीछे, हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। लेकिन अगर आप दिलचस्पी नहीं लेंगे तो नहीं होगा। तो मैं आप तमाम से यही दर्दमंदाना अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि अपने बच्चों को पाबंदी से भेजिए। और आज हम पूरे नामों का ऐलान करेंगे। अभी जो भी दाखिले हुए, बीच में कोई भी उठ के कुछ भी बोलना चाहता है तो नहीं सुनूंगा। मैं अपना काम करने आया हूं, पहले अपना काम करूंगा, अपना काम पहले करूंगा, उसके बाद सुनेंगे। हम हमारे फेरिस जो है बच्चा बड़ा
خیریت